Good afternoon, everyone. I hope you have been able to understand the topic of center of mass properly. है ना? Rigid body की जो equation हमने derive करी थी rotation के लिए, there were three total equations. Omega is equal to omega naught plus alpha t, और जो s is equal to ut plus half a t square, उसके प्लेस पे क्या आ गया था? Theta is equal to omega naught t plus half alpha t square, right? And third equation, at the place b square minus u square is equal to 2as, we had omega square minus omega naught square is equal to twice alpha theta, right? Specifically आपको बताया गया कि अगर आपको number of rotation या number of revolution find करना हो तो क्या करेंगे? When you find theta, what is theta? It is total angle covered. You can understand एक rotation में total angle कितना cover होता है? 2 pi. So 2 pi is the angle covered in one rotation. If there are total n number of rotations, it becomes 2n pi. So 2n pi is theta. N is theta upon 2 pi. So total rotation divided by 2 pi gives you the number of rotations. Fine. Let's do one simple question, two simple questions based upon this. लिखिए जरा. Write down. A wheel rotating with 20 revolutions per second, 20 revolutions per second, undergoes uniform angular acceleration, such that it starts rotating with 80 revolutions per second, 80 revolutions per second in 10 seconds. In 10 seconds, right? Initially 20 revolutions per second, finally 80 revolutions per second, time taken being 10 seconds, and alpha is constant. So calculate number one, total number of revolutions in 10 seconds. Total number of revolutions in 10 seconds. And second, the angular acceleration. चलिए, come on quick. I shall wait for your answer. तब तक मैं स्लो समझाता जाता हूँ. जिन लोगों को न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, they should look at me. Otherwise, अगर आप कर सकते हो, you should try it on your own. First thing to do, write the symbols. हमें इक्वेशन अप्लाई करने के लिए ओमेगा चाहिए, but what I have provided to you is number of revolutions per second. Number of revolutions per second का सिंबल क्या होता है? Anybody? Number of revolutions per second के लिए मैं क्या सिंबल यूज करूं? Most of the times हम न्यू यूज करते हैं, कोई बात नहीं, सीखते जाइए. न्यू या एफ, इट इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी. ऐसे समझिए, एक सेकंड में कोई चीज कितनी बार घूम रही है, राइट? एक सेकंड में कितनी बार घूम रही है, दैट इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड. सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड बेसिकली इज फ्रीक्वेंसी. तो आप उसके लिए ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हो या स्मॉल एफ भी यूज कर सकते हो. This is more used, so I'll go with this. This represents frequency. It's given to be 20 rps, 20 revolutions per second. But समझिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ओमेगा चाहिए, और इनिशियली जो ओमेगा होती है उसे हम ओमेगा नॉट लिखते हैं. So I am looking forward for omega naught. That should be 2 pi into nu, right? आप nu naught लिख दीजिए, तो 2 pi into nu naught. Simply multiply 20 with 2 pi, that gets you 40 pi. 40 pi पर यूनिट्स क्या बन जाएंगी? ओमेगा क्या होता है? एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम. सो इट शुड बी मेजर्ड इन रेडियन पर सेकंड. ठीक है, आप अच्छे से समझते जाइए. एक रिवीजन है आपका ये, पहले हम सर्कुलर मोशन में कर चुके हैं सारी चीजें. दैट्स व्हाई आई एक्सपेक्टेड कि आप में से कुछ लोग बता पाए. nu naught is 20 rps, we convert into omega naught, that is 2 pi into nu naught, gets me 40 pi radian per second. Along with this, the final angular velocity, देखिए nu कितना बताया इसने? 80 rps. So what is omega? Sir, 12 pi. Ajay? 12 pi. 12 pi. Angular acceleration.
अच्छा ठीक है, सॉरी, अभी मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया तो लेट अस सॉल्व, उसके बाद क्लियर करते हैं। अंशुल बोल रहा है? यस सर। ठीक है अंशुल, वेरी गुड। बाकी लोग भी सॉल्व करो, धनंजय, अगम, अर्नव। You can see that the frequency has become 4 times, so it also becomes 4 times, 165 रेडियन पर सेकेंड। लिखते जाए आप लोग। जो भी मेरे साथ क्वेश्चन कर रहा है, बात के लिए वेट ना करे, यू हैव टू राइट इट अलोंग विद, अंडरस्टैंड एंड राइट, and try to make yourself capable so that next question you do not need my help, right? Nu naught is this, omega naught becomes this, nu is this, omega becomes this. Fine. Having the value of omega, Excuse me, sir. omega naught, and knowing the time. Yes, Agam? Yes, Agam? सर Time is टाइम 10 क्या गिवन है सर? omega क्या naught, सर omega कितने? 10 सेकंड। आपको फाइंड करना है अल्फा और नंबर ऑफ रोटेशंस या रेवोल्यूशंस। सो पहले मुझे अल्फा फाइंड करना पड़ेगा। Which equation should be used? Come on, speak up. Which equation according to you should be used? First, second, third. First equation. अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन velocity, सर। yes exactly, अगर आपको velocity पता है, टाइम पता और एक्सेलरेशन चाहिए, ऐसे सोचो, वेलोसिटी पता है इनिशियल और फाइनल, राइट? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और टाइम भी गिवन है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? फर्स्ट, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो मैं ये बोल रहा हूँ, यू नीड टू बी कंफर्टेबल, जैसे v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, वैसे यहाँ पे यूज करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सो गोइंग फॉर दैट, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब तो आप सॉल्व कीजिए फटाफट। अल्फा बिकम्स इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय, so what answer would I get from here? देखें, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, 165 माइनस 45 is 125, 125 divided by 10। so अंशुल आपका आंसर बिल्कुल सही था, it is 12 pi, 12 pi radian per second square। exactly, very good। I want more of you to come out with answers, right? समझिए और सॉल्व कीजिए। 20 it comes out to be 12 pi radian per second square। now what do we need to find? we need to find n number of revolutions। वो कैसे निकलेगा? पहले थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो थीटा फाइंड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस आ गए हैं। आप यहाँ पर अल्फा कैलकुलेट कर चुके हैं, either you use the second equation और third equation, दोनों से थीटा निकल जाएगा। let me go for second equation। it says theta is equal to omega naught t plus half alpha t square। dear students, it is very very important कि आप मेरे लिखने के बाद सोचना शुरू ना करें। बहुत छोटी सी क्लास होती है, अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स की, उसके ड्यूरिंग ट्राई टू कीप योरसेल्फ एक्टिव। जब भी कोई चीज बोली जाती है तो ट्राई टू बी अहेड ऑफ मी, दैट विल मेक द सब्जेक्ट मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। ओके, सो वी हैव टू फाइंड थीटा फर्स्ट। सो क्या फॉर्मूला है? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। पुट द वैल्यूज हियर। व्हाट इज ओमेगा नॉट? इट्स 40 pi। so 40 pi into t is 10 seconds plus half of alpha, that is 12 pi into t square, that becomes 100। so let's see, 1000 pi. it becomes, see, 400 pi plus 600 pi। बिल्कुल सही। आई होप वृंदा बोल रही थी, it becomes 1000 pi, राइट? अभी ऑनलाइन टीचिंग का पता है बेनिफिट क्या हुआ? मैं आवाज से तो पहचान लेता हूँ, सिग्नल से नहीं पहचान पाता। so 400 plus 600 becomes 1000 pi। this becomes theta। यूनिट क्या होगी? रेडियन। बेसिकली the angle covered is this। so थीटा आ गया। अब n निकालना है। आपको समझ में आया कि एंगल जो होता है वो n times 2 pi होता है। so n becomes equal to theta upon 2 pi। just put the value। it is 1000 pi upon 2 pi। pi gets cancelled, so it is 500। so it undergoes 500 revolutions in 10 seconds। पता है, यहाँ पे देखने पे हो सकता है किसी को लगा है 20 से 80 तो हुआ, 4 में तो हुआ, बट कितनी रेवोल्यूशंस करनी पड़ी? 500। so this was one question जिसमें मैंने I tried to make the question or frame the question such a manner कि आपको दो इक्वेशंस यूज करनी पड़ी और स्ट्रेट अवे सॉल्व करने की बजाय पहले आपको पता होना चाहिए कि थीटा निकलेगा, थीटा को 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो जाके। होप इट्स क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं, एंड माय सजेशन इज, जब मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं तो आप सिर्फ उसे लिखा ना करें, इमेजिन करते रहो साथ, राइट? सो दैट बाय द टाइम यू एंड अप राइटिंग द स्टेटमेंट, आपको ऑलरेडी पता हो कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर कैसे एंटर करना है, हाउ टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। राइट डाउन।
given that revolutions of a wheel change from 100 RPM to 60 RPM. M stands for minute. 100 RPM to 60 RPM due to a constant retardation. आप देख सकते हैं डिक्रीज हुआ तो वी हैव टू से रिटार्डेशन ड्यू टू कांस्टेंट रिटार्डेशन. और रिटार्डेशन की वैल्यू लिख लेते हैं. दैट इज से 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. डन. नाउ calculate number 1 time taken and number 2 the number of revolutions. I repeat, revolutions change from 100 RPM to 60 RPM due to a constant retardation of 2 pi radian per second square. तो मेरा कहना ये था, जैसे आप इसे देखते हो तो अब एटलीस्ट इन दिस क्वेश्चन क्या होना चाहिए था कि आप मेकआउट करो दिस इज न्यू नॉट दिस इज न्यू एंड आई नो आई विल फाइंड ओमेगा नॉट एंड ओमेगा. ये मेकआउट करना था. और अल्फा गिवन है व्हिच इज 2 pi radian per second square. टी फाइंड करना है. टी फाइंड करना है तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? ओमेगा है, ओमेगा नॉट है, अल्फा है, टी निकालना है तो कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज व्हाट आई मीन. या कीप योरसेल्फ एक्टिव व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. करो शाबाश. आदित्य ने बताओ आंसर भी कर दिया 2/3. वेरी गुड आदित्य. बाकी लोग करें, स्टार्ट करें. शाबाश. दिस इज न्यू नॉट, दिस इज न्यू. पर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि किसी ने ना कहीं गड़बड़ करी होगी. पता है कैसे? दिस इज गिवन इन आरपीएम. I first need to convert it into RPS. I don't know आपने किया कि नहीं किया. Let's see. जो ऐसा यूनिट है वो RPS. So divide by 60 gives me RPS. तो 60 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 100 by 60, 5/3. So it becomes 5/3 RPS. Similarly, इसे मैं 60 से डिवाइड करूंगा, it becomes 1 RPS. 5/3 revolutions per second, 1 revolution per second. So what is omega naught? Omega naught is 2 pi into nu naught. ठीक है ना? इंटरेस्ट से करो क्वेश्चंस, याद करो 6 7 8 में आप कैसे पढ़ते थे टीचर के साथ. जो टीचर ने बोलना साथ साथ आप बोलते थे. द सेम काइंड ऑफ थिंग इज रिक्वायर्ड नाउ बिकॉज़ 11th आपको एक अलग लेवल पे लेके जा रही है. वो लेवल रेज करने के लिए ट्यून इन करना बहुत जरूरी है. देखो फिर से 2 pi into nu naught. It is 2 pi into 5/3, 10 pi/3 radian per second, right? So what is omega? Omega simply becomes 2 pi into 1, so that is 2 pi radian per second. So kindly take care of the units, must go in seconds. ठीक है, ओमेगा नॉट ओमेगा मिल गया. अल्फा ऑलरेडी आपके पास. It is 2 pi radian per second square. Should I mention alpha to be positive or negative? Are we going for acceleration or retardation? So should Some negative. Yeah, this is what I mean. Active रखो. सिर्फ लिखते मत जाओ. क्वेश्चन में इन्वॉल्व होना चाहिए. अरे यार ये तो ऑपोजिट है तो नेगेटिव है. Right? Now we need to calculate time first. So going for first equation, omega is equal to omega naught plus alpha t. So t 3.33 seconds. ओमेगा नॉट बाय अल्फा. मुझे ना आवाज क्लियर नहीं है आपकी. ओमेगा इज 2 पाई, कोई बात नहीं, माइनस दिस इज 10 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय अल्फा व्हिच इज -2 पाई. एक बार फिर से बोलो वृंदा, क्या आंसर था आपका? 3.33 seconds. ओके, 3.33 सेकंड्स. लेट अस सी कितना आता है. 2 पाई माइनस 2/3. 3 to the 6, 10 minus 6 is 4, minus 4 pi by 3, right? Minus 4 pi by 3 or divided by -2 pi. Pi gets cancelled.
2 पाई से ये 2 आ गया, तो मेरा आंसर 2/3 आ रहा है। क्या आपका भी आ रहा है? माइनस तो नहीं आता हर्षित, टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता, सो बी केयरफुल, अल्फा को नेगेटिव पुट करना था। सो इट इज 2/3 seconds, that is 0.67 seconds. Hope you have been able to understand it properly. So एक बार t निकल गया, अब निकालना है n. I want to give you some time for solving this. Come on, solve करके बताएं. चलिए, I hope you would be about to solve this question. तो मैं start कर लेता हूँ. Theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. Theta becomes equal to omega naught for me is 10 pi by 3. 10 pi by 3 into t. Time has come out to be 2/3. Plus half of alpha. Alpha for me is minus 2 pi. Must be written minus 2 pi. जिसने यहाँ पे 2 pi लिख दिया आंसर गलत हो जाएगा बेसिकली इसका. So minus 2 pi into t square यानी 4/9. Reason समझो, जैसे s is equal to ut plus half t square is a vector equation. Similarly, this also is a vector equation. Reason being, so when the object rotates, हम omega और alpha axis के along define करते हैं. लेकिन वो दोनों सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट में है. जैसे मैं बार-बार आपको फैन का एग्जांपल देता हूँ. When you switch on the fan, then omega and alpha are in the same direction. But when you switch it off, then omega and alpha are in opposite direction. So वो ध्यान रखना होता है. Omega is reducing. So theta now becomes equal to कितना आ जाएगा यहाँ से 20 pi by 9 plus ये 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस के जगह आ जाएगा नेगेटिव, माइनस देखिए 4 pi by 9. 4 pi by 9. It gives me 16 pi by 9. कितने रेडियन? Agree? Okay, 16 pi by 9 रेडियन आ गया. तो मुझे अब n फाइंड करना है. तो अब तक ये होना थीटा बाय 2 पाई करना होता है, राइट? लर्निंग ऐसी होनी चाहिए कि जो धीरे-धीरे आपको अपग्रेड करे, ना कि वहीं रखे. So n should be theta by 2 pi. Theta has come out to be 16 pi by 9 divided by 2 pi. Pi gets cancelled. 8 by 9. 8 by 9 revolutions. तो ये तो एक रेवोल्यूशन भी नहीं हुआ. नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितनी आई? 8 by 9 लेस देन 1. 0.9 approximately 0.9. यानी एक रेवोल्यूशन होने से पहले ही ऐसा हो चुका है. Hope it's clear to you. चलिए, अब आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे. Let us now move on to the next topic we will do. We start with movement of inertia, which is a very very important topic. और मैं बार-बार Excuse me, sir. Yes, dear. बोलिए. सर वो चैट चेंज कर दो. वो सर चैट चेंज कर दो. चैट नहीं कर पा रहा, मतलब मैसेज नहीं सेंड कर पा रहा आपको. मैसेज सेंड नहीं कर पा रहा, बट इसमें मैंने तो कुछ नहीं किया हुआ. सर वो रविकांत वाला, वो सैमसंग S10 प्लस वाले पे कर दो, उस पे हो जाता है. ये उस दूसरे वाले पे नहीं हो रहा. होस्ट वाले पे कर दो सर आप. So let's start with the next topic, that is moment of inertia. Kindly write down moment of inertia. इसे प्लीज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मत लिख देना. इट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स सिंबल इज I. I is the symbol for movement of inertia. Let us first try to understand कि इसका मतलब क्या होता है. इसके लिए पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है. So अगर एक ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होता है तो उसका क्या चेंज करना डिफिकल्ट होता है. Try to give me the answer. If a certain object has got higher inertia, state of motion, very good, excellent. Change in motion. हाँ जी, मेरे ख्याल से ये सब बच्चे समझते हैं. कोई बहुत ही आसान आंसर करता तो ये कहता सर उसकी वेलोसिटी चेंज करना मुश्किल है, उसका एक्सेलरेशन चेंज करना मुश्किल है. बट द राइट आंसर जो इन बच्चों ने बताया, दैट इज स्टेट ऑफ मोशन. बिल्कुल सही, राइट? अगर एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, हेवी ऑब्जेक्ट है, तो इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. बट that was the case only in translatory motion, when an object is traveling in a straight line or a parabolic path like this. जैसे प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, याद है? लिखो स्टार मार्क करके. We already know, ये लिखेंगे आप पूरा. We already know that greater the inertia of an object, comma, more difficult is to change the state of translatory motion, right? तो एक वर्ड ऐड हो गया एक्स्ट्रा, क्योंकि अब रोटेशन की तरफ जा रहे हैं तो ज्यादा ध्यान से लिखना पड़ेगा.
greater the inertia of an object, more difficult is to change the state of translatory motion. ठीक है, अब लिखिए similarly, greater the moment of inertia, more difficult is to change the state of rotational motion. More difficult is to change the state of rotational motion. ठीक है, अभी मेरी एक्सपेक्टेशन पता है आपसे क्या थी, जब मैं आपको ये बोल रहा था मोर डिफिकल्ट इज चेंज द स्टेट ऑफ रोटेशन मोशन, तो आप में से कुछ बच्चे होंगे शायद, पर सबसे क्या एक्सपेक्टेशन थी कि आपने साथ साथ इमेजिन किया हो कि एक ऑब्जेक्ट को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि एक टायर है, राइट, एक टायर को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा तो उसको घुमाना मुश्किल होगा, मतलब उल्टा बोलते हैं, जिस टायर को घुमाना ज्यादा मुश्किल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, जिसको घुमाना आसान है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। क्या बात समझ आई आपको? टेक्निकली बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद द कांसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसको घुमाना या घुमाए मतलब घूमते ऑब्जेक्ट को रोकना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल पहले मैंने आप लोगों को बोला था क्रिकेट बैट के बारे में। आई डोंट नो आप में से कितनों ने ट्राई किया, जो यहाँ बैठे हैं, जो क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन, वो सभी ध्यान से सुनना। एक क्रिकेट बैट को उसके हैंडल से पकड़ के घुमाना और फिर उसके बॉटम से पकड़ के घुमाना। केस 1, केस 2, which one is easier, 1 or 2? You can write in your chat box, आप बता सकते हैं, आप फिंगर रेज कर सकते हैं 1 और 2। एक बैट को हैंडल से पकड़ के घुमाना या फिर उसके बॉटम से पकड़ के घुमाना, कौन सा केस आसान है, इजी है? 1 और 2? यस, कम ऑन। 1 सभी 1 कह रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को तो मैं करवा के भेजूंगा, मेरे पास बैट रखा हो यहाँ पे। और मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, फिजिक्स आसान हो जाती है अगर तुक्के ना मारने पड़े, राइट? वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स आसान हो जाते हैं अगर तुक्के ना मारने पड़े। ये पता नहीं भगवान ने सिस्टम ऐसा ही बनाया है सबके लिए, मेरे लिए भी आपके लिए भी, कि 80% या 85% तुक्के गलती आते हैं, राइट? तो अब सुनिए फिर ध्यान से, बैट को कन्वीनियंट है उसके हैंडल से पकड़ के खेलना, ध्यान से सुनना, कन्वीनियंट, राइट, बट आसान है बॉटम से पकड़ के घुमाना। तो आज आप ये काम करके देख लेना, राइट? चलिए, मुझे वो सब चीजें समझानी है ऐसा क्यों है। दिस इज ऑल बिकॉज अगर आप एक क्रिकेट बैट को उसके हैंडल से पकड़ के घुमाते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, और जब उल्टा पकड़ के घुमाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपैरेटिवली कम होता है, इसीलिए घुमा पाना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। हाँ जी अर्नव, कुछ कहना चाहते हैं आप? सर अगर हम बैट को नीचे से पकड़ के घुमाते हैं सर, वो इजीली घूम जाता है, क्योंकि हमारा जो वेट होता है बैट का वो हमारे हैंड्स में रहता है और नीचे साइड उसका वेट कम रहता है, इसलिए वो इजीली घूम जाता है सर। आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, इसलिए मेरे लिए आपको समझा पाना आसान होगा एज कंपेयर टू अदर्स, लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से ठीक नहीं है। ये बात कहना सही है कि उसका ज्यादातर वेट वहां पर है, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वेट, इट इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। वो चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे क्लास के अंदर, ठीक है? अब बात करते हैं एक व्हील की। व्हील की बजाय यार उसको क्या बोलते हैं, वो बॉडी में ऐसे डाल के राउंड सा रिंग होता है उसको घुमाते हैं, ओला हुक, राइट? जो ओला हुक होता है, अब कभी आपने ट्राई किया है ऐसा? एक बड़ा सा रिंग लेकर अगर आप उसे अपनी बॉडी के अराउंड ऐसे रख के और ऐसे कमर घुमाते हैं तो वो घूमता है साथ में, बड़ी मुश्किल से घूमता है भाई, ये घूमता नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है, वहां पर आप लप्पा आसानी से लग जाता है। हाँ जी, अगर लप्पा तो सही लगेगा, लेकिन सेकंड सिचुएशन में, लेकिन वो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो इतना कम हो जाता है कि आपके बोल्ड होने की सिचुएशन ज्यादा हो जाती है, बट स्टिल दैट्स ओके। चलो आगे सुनिए, जो बता रहा था, ओला हुक को, क्योंकि आपको ध्यान से देखना, आपको अपनी बॉडी को यहां रखना पड़ता है, इसीलिए एक्सिस यहां बन जाती है, जबकि अगर एक व्हील को आप सेंटर के अबाउट घुमाना चाहें तो घुमाना आसान होता है। अगर एक व्हील को सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घुमाना होगा तो दैट विल बी इजियर, और अगर उसे इस एक्सिस के अबाउट घुमाना होगा तो दैट विल बी कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, ना ही आप मुझसे पूछे कि सर कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया। अभी आपको सिर्फ ये समझना है, अगर सर ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। हम सब एक साथ सीखेंगे, फिर अपने आप इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे, ठीक है? आई थिंक दिस वाज एनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड
कि रोटेशनल स्टेट को अगर चेंज करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर कम है तो आसान है। अब लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। अच्छा हाँ, एक बात और समझना, ऐसा कहना सही नहीं होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग एक्सिस के अबाउट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? तो फिर भी लिख लो आप, ये दिमाग में कहीं रह ना जाए, स्टार मार्क करके। It is not correct. It is not correct to say. Not correct to say that moment of inertia would be greater. Moment of inertia would be greater if inertia is greater. If inertia is greater. Because moment of inertia of same object, moment of inertia of same object is different about different axes. या इसकी जगह ना may लिख दो, maybe different about different axes, about different axes. ठीक है, उसके लिए आप एक डायग्राम बना लो, आपको इजी लगेगा। जैसे पेन है मेरे पास, आपके हाथ में पेन है, उस पेन को सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घुमाना आसान है, इजी, जबकि इस एक्सिस के अबाउट घुमाना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, क्योंकि इसका मास बहुत कम है तो उतना पता नहीं चलता। एक बड़ी सी रॉड लेके सेंटर लटकी होती है, जैसे बीच से पकड़ के घुमाना आसान है, लेकिन एंड से पकड़ के घुमाना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। तो एक्सिस 1, एक्सिस 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1। ठीक है, सेंटर से पकड़ के घुमाना आसान है तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, यहाँ से पकड़ के घुमाना डिफिकल्ट है तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो दैट इज इट, I2 इज ग्रेटर देन I1। अब कोई लॉजिकली सोचना चाहे तो ऐसे सोच सकता है, बना लो एक बार फटाफट। लॉजिकली आपको सोचना हो तो कैसे सोचेंगे, या अगर मैं डायग्राम से देखना चाहूँ कि ऐसा क्या फर्क पड़ गया, ऐसा क्या चेंज आ गया 1 और 2 में कि 2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया। जस्ट सी केयरफुली, एक्सिस 1 से जो मास पार्टिकल्स हैं उनका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है। लेट अस कंसीडर रॉड टू हैव अ लेंथ L, रॉड की लेंथ L है, तो यहाँ से किसी भी मास पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना, L/2 इधर और L/2 इधर, मानते हैं। जबकि एक्सिस 2 से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कहां तक चला गया, L तक चला गया। यानी हो सकता है यार, ये जो इतना सारा डिस्कशन चल रहा है, इससे इस बात पे डिपेंडेंस हो कि मास कितनी दूर है। अब मेरा लास्ट एग्जांपल, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हाँ, मैं चाहूंगा कि आप ट्राई करें इसका आंसर, लेकिन अगर आपने ये कभी नहीं किया तो जस्ट होल्ड, रेज हैंड, डू नॉट स्पीक अप। जिसने कभी किया हो वो बोल सकता है। द सिचुएशन इज, आपने एक स्ट्रिंग ली, उसके साथ एक हैवी सा पत्थर बांध लिया, राइट, जैसे शॉर्टपुट होता है, और फिर आपने कंपैरेटिवली बड़ी स्ट्रिंग की, मैं चेन कर लेता हूँ, ये एक चेन है और इस चेन के साथ एक स्फीयर बांध दिया हम लोगों ने, और अब एक बड़ी चेन ली और उसके साथ वही स्फीयर बांध दिया। आई एम कीपिंग इट टू बी द सेम, चेन की लेंथ मैंने डबल कर दी सपोज। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, आप मुझे बताएं अब इन दोनों में से आपके लिए किसको घुमा पाना आसान है, 1 और 2। बोलने की बजाय रेज हैंड, I would prefer if you raise it because that would not affect the thinking process of others. चैट वाले लिख सकते हैं 1 और 2, 1 और 2 में से किसको हैंड रेज करो, फिंगर रेज करो, 1 और 2। इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि आपके लिए किसको घुमाना आसान होगा। जस्ट इमेजिन यू आर इन अ प्लेग्राउंड, आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम चल रहा है और वहां पे आपके सामने दो सिचुएशंस हैं, ये वाली चेन के साथ स्फीयर, इस वाली चेन के साथ स्फीयर, और सर ने आपको लिबर्टी दी कि तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी उठाओ और घुमा दो, तो तुम इसमें से किसको उठाना पसंद करोगे, 1 को और 2 को, तुम्हारी मर्जी है, मतलब दैट इज टोटली योर चॉइस। राइट और रॉन्ग बाद में आएगा। प्रीति कम ऑन। हाँ जी, ओके। और अभी क्या है, जितने यहाँ बैठे हैं उनमें से ज्यादातर ने सेकंड बोला है, जबकि जितने चैट बॉक्स में आए उनमें से ज्यादातर ने 1 बोला। राइट, बोला 2 भी है लेकिन 1 बोला ज्यादातर ने। अरे इट वाज ग्रेट टू सी लाइक ऑलमोस्ट एवरीबॉडी पार्टिसिपेटेड इन दिस, वेरी गुड। तो अगर मुझे कहेंगे तो मैं 1 उठाऊंगा। 1 को घुमाना आसान है, 2 को घुमाना डिफिकल्ट है। जस्ट इमेजिन एक छोटी चेन के साथ कुछ बंधा हुआ है, उसको घुमाना है,
और एक लंबी सी चेन है, उसके साथ कुछ बंधा है, उसको पकड़ के घुमाना है। बड़ी चेन में आपका जोर ज्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि उसको रोटेशन प्रोवाइड करना डिफिकल्ट होगा। दिस इज व्हाट आई मीन। अब वही बात है ना, हमारा सिस्टम थोड़ा सा अलग है। नहीं तो अगर हम फिलहाल स्कूल में कहीं ऐसी जगह पढ़ रहे होते जहाँ पे अवेलेबिलिटी होती तो क्लिनिक ज्यादा आसानी से समझ आती। अभी क्या होगा, कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, लाइक इसे घुमाना इजी है, इसे घुमाना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, राइट? हुआ क्या, इसमें भी वही मास है, इसमें भी वही मास है। मान लो चेन का मास नेग्लिजिबल है, मास सेम है, लेकिन मास का डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज समथिंग व्हिच डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, मास एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। सो नाउ वी कैन राइट। तो आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, इट इज इजियर टू bring the system one in rotation. It is easier to bring system one in rotation. ठीक है, साथ में एक तो because its moment of inertia is lesser. Because its moment of inertia is lesser. It is easier to bring system one in rotation because its moment of inertia is lesser. ठीक है, by now we have understood some of it, like distance पे depend करेगा, mass पे depend करेगा, तो हम इसको पूरा लिख देते हैं। Write down moment of inertia is the rotational analog ANALOGUE analog of inertia, rotational analog of inertia, such that, जो मैं आपको अब लिखवा रहा हूं ये आपने एग्जाम में लिखना है, राइट? Such that greater the moment of inertia, comma, difficult is to change the state of rotational motion. Difficult is to change the state of rotational motion. Fine. अब इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखिए। It may be defined as the product of mass and square of its distance from axis of rotation. May be defined as product of mass and square of its distance from rotation. तो जैसी डायग्राम बनाऊंगा तो आपको आसान लगने लगेगा। This is the axis of rotation, and suppose we have this mass m whose distance from the axis is r. In that case, my dear, the moment of inertia becomes mr square. लिखे please. I becomes equal to mr square. ये मैंने कहां पे शो किया? जब सिर्फ एक मास पार्टिकल कंसीडर किया। But the situation is we are talking about system of particles, like a number of masses may be present there. तो क्या करना है? अब ये क्लैरिटी चाहिए कि सर अगर मासेस एक से ज्यादा हो जाएंगे तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कैसे करना है? Should it be added in scalar form or vector form? That means is moment of inertia scalar or vector? So पहले write down moment of inertia is treated as a scalar. थोड़ा सा घुमा के लिख रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि आपने वर्ड सुना होगा स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर, है ना? तो वो थर्ड वाली कैटेगरी है, बट हमें इसमें सेटिस्फाइड रहना है। वी ट्रीट इट एज अ स्केलर, मतलब अगर एक से ज्यादा मासेस हुए तो आप सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके उसको स्केलर फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। डायरेक्शन डज नॉट मैटर, जो मैं अभी शो करता हूँ। लिखिए, इफ देयर बी a number of mass particles as shown, if there be number of mass particles as shown,
तो यहाँ पे मैं आपको n नंबर ऑफ मास पार्टिकल शो कर रहा हूँ। m1 at distance r1, m2 distance r2, mn मतलब ये 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। So this way rn, and my dear, this again is the axis of rotation. Axis of rotation. Suppose इसके about ऐसे घूमने वाला सिस्टम, तो what would be the moment of inertia in this case? I hope you are capable of writing it of your own, knowing that एक मास के लिए mr square होता है and we treat it as a scalar, तो सभी के लिए जो होता है उसे उठा के ऐड कर देना है। तो लिखिए जरा, hence I becomes equal to m1 r1 square plus m2 r2 square up to mn rn square, right, which is equal to summation mi ri square, where I goes from 1 to n. This is the moment of inertia. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए समझना। कई लोग एग्जाम में ये सब करने के बजाय डायरेक्ट यहाँ से भी शुरू कर देते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन कितने मार्क्स का है। तो आपने डिफाइन किया कि ये इनर्शिया का एनालॉग है, मतलब रोटेशन में अगर स्टेट चेंज करनी है तो जितना ये ज्यादा होगा उतना मुश्किल होगा। जैसे मैं, आप भूलना मत कि सर ने क्रिकेट बैट का एग्जांपल दिया, ओलोग का एग्जांपल दिया, है ना, व्हील का एग्जांपल दिया, चेन के साथ स्क्वायर बांध रखा उसका एग्जांपल दिया। आप जितना एग्जांपल्स को याद रखेंगे कॉन्सेप्ट याद रखना आसान है। फिर ओवरऑल एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए आप I = ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है डियर, तो अब सुनो मैंने क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो समेशन mi ri square, right? What is the SI unit of moment of inertia? Come on, what should be the SI unit? बोलो बोलो, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर है। मास को किसी भी मेजर करते हैं, किलोग्राम। I'm not saying dimensional formula, I'm saying units. So mass is in kilogram and distance is in meter. So SI unit becomes kilogram meter square, and the dimensional formula becomes ml2. अब मुझे पता है क्या लग रहा है, जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो आपको मतलब आपके मुंह से कुछ भी निकलवाने के लिए मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आदत ऐसी बन गई है कि हाँ सर नाच रहे हैं, है ना। चलिए, SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला इज ml2। सिग्मा वाली टर्म फिर से लिख दो। अगर सिग्मा वाली टर्म ये थी मेरे भाई कि I = summation I goes from 1 to n mi ri square। इसका मतलब समझो, I को 1 लिखा तो m1 r1 square, समेशन का मतलब प्लस आ गया, फिर m2 r2 square प्लस m3 r3 square एंड सो। तो वो लिखी नहीं थी समेशन, तो वो मैथ्स में सीख लिया था। ठीक है, ध्यान दें, इसकी इंपॉर्टेंस भी क्लियर हो गई। अब जरूरी है लिखना कि किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। राइट नाउ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन, तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो देखा जाए तो एक सिस्टम में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हम एक्सिस कहां पर चूज कर रहे हैं, सिस्टम का टोटल मास कितना है, ये सब चीजें जो अफेक्ट करेंगे। राइट, लिखिए जरा। नंबर 1, इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब एक ही बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अलग अलग आ सकती है। Second, it depends upon the distribution of mass. Depends upon the distribution of mass around axis of rotation. Depends upon distribution of mass around axis of rotation. अब इसका मतलब पता है क्या, आपने क्या कैरी करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में मास हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर मास हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। एक्सिस से जितना दूर मास है उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, जितना पास है उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। ठीक है, आई विल गिव यू वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आफ्टरवर्ड्स। थर्ड थिंग, तीसरा लिखिए, इट डिपेंड्स अपॉन साइज एंड शेप ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट।
मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिखो या गिवन ऑब्जेक्ट लिखो, एक ही बात है, तो द गिवन ऑब्जेक्ट। सो दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगी। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। अर्थ में जो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं, आइस ज्यादातर पोल्स के ऊपर ही पड़ी हुई है। अगर ये पोलर आइस मेल्ट कर जाए तो कहां जाएगी? इट विल फ्लो टुवर्ड्स इक्वेटर, राइट? ये हमारी अर्थ है, इसके पोल्स के ऊपर आइस पड़ी हुई है। अगर ये आइस मेल्ट हो जाए तो कहां जाएगी? इट विल गो टुवर्ड्स इक्वेटर। गॉट दैट? और अर्थ इसी एक्सिस के अबाउट घूमती है जो एक्सिस पोल से पास कर रही है। सो व्हाट डू यू से? इफ पोलर आइस मेल्ट्स, would that increase or decrease the moment of inertia of Earth? Give your answer. Increase के लिए 1, decrease के लिए 2. Increase 1, decrease 2. Come on, आपने कभी भी आंसर देने से पीछे नहीं हटना, सही गलत बाद में चलता रहेगा। Come on, quick, raise your finger, 1 or 2. I repeat my question. If the polar ice melts, would that increase or decrease the moment of inertia of Earth? Come on. भाई साहब हैंड रेज चाहिए, मुझे फिंगर रेज चाहिए। Come on, quick. थिंक, आपने भी सीखा, क्या सीखा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्सिस से मास कितनी दूर है। इफ द मास इज नियर बाय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेसर। इफ मास इज फादर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स ग्रेटर, राइट? सो जस्ट गिव योर आंसर। इन केस दिस आइस मेल्ट्स, इट विल गो टू इक्वेटर, राइट? सो व्हाट डू यू से? विल दिस इंक्रीज 1 और डिक्रीज 2 द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जल्दी करो, जल्दी आगे बढ़ना है। बोलो बोलो फटाफट, रेज योर फिंगर। ठीक है, देखते हैं। ऑलमोस्ट ज्यादातर कहूंगा आंसर कर रहे हैं 1। क्या आइस मेल्ट होने के बाद एक्सिस से दूर गई या पास आई? ये एक्सिस है, देखो, दिस इज द एक्सिस। ग्लोब इमेजिन करो, अर्थ के लिए ग्लोब इमेजिन करो। उस ग्लोब के टॉप पे आप आइस रख दो, वो आइस एकदम एक्सिस के क्लोज है। जैसे वो आइस मेल्ट करेगी तो कहां जाएगी? इधर साइड पे चली जाएगी, तो वो एक्सिस से दूर हो जाएगी। सो इन दैट केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड पार्टिसिपेट, देन ओनली विल द थिंग्स बी गुड। चलिए, क्लियर हुआ? तो स्टार मार्क करके लिख लो, स्टार मार्क कीजिए और लिखिए, if the polar ice melts, if the polar ice melts, comma, it will increase the moment of inertia of Earth. It will increase the moment of inertia of Earth because resulting water would flow towards equator. Because resulting water would flow towards equator, increasing distance from axis of rotation. ठीक है, मैं यही बोल रहा हूं, आपको सिर्फ लिखने पे ध्यान नहीं देना है, एक फॉर्मेलिटी नहीं है ये। आई एम ट्राइंग कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़े समझे। एक्सिस से जितना दूर मास होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा। सो रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से ज्यादा दूर मास चला गया। क्लियर? चलो इसी का एक एग्जांपल और पूछ लेता हूं आपसे, फटाफट से आंसर करना, अगर उसके बाद बात करूंगा आपकी। आप देख रहे हो ना, अर्थ के ऊपर बड़े तगड़े तरीके से ये कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है ना? मतलब क्या कर रहे हैं? कंक्रीट का जंगल का मतलब क्या है? बिल्डिंग्स बनती जा रही है। सो वो जो मिट्टी है या बाकी चीजें, वो कहां से आ रही है? अर्थ के अंदर से ही निकालते हैं और उसी के ऊपर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। यही होता है ना? वेयर डज द मटेरियल कम फ्रॉम? कम्स फ्रॉम अर्थ इटसेल्फ। डिग आउट करके निकालते हैं और ऊपर बिल्डिंग्स बना देते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ रिड्यूस कर जाएगा या इंक्रीज कर जाएगा? अगेन, इंक्रीज के लिए 1, डिक्रीज के लिए 2। लिखिए क्वेश्चन। What happens to the moment of inertia of Earth? What happens? See, कहाँ सोचा जा सकता है ना? What happens to moment of inertia of Earth? Due to construction of
very high buildings on it. Construction of very high buildings on it. तो अब तो आप आंसर कर सकते हैं आराम से। फिर से जो यहाँ बैठे हुए हैं, इंक्रीज के लिए 1, डिक्रीज के लिए 2, कम ऑन क्विक। हाँ जी, हो गया, बहुत बढ़िया। ओके 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 1। आप देख सकते हैं, फिर सुनो ध्यान से, आप जब बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप मटेरियल को अर्थ से निकाल के उसके ऊपर लेके जा रहे हैं। देखो ध्यान से, आप मटेरियल यहाँ से निकाल के और यहाँ पे ऐसे ये कर रहे हैं। अब आंसर करने की कोशिश करो। मटेरियल आपने एक्सिस के पास से निकाला है और वहां से कंपैरेटिवली आप उसको दूर ले रहे हैं। सो मास का डिस्टेंस एक्सिस से बढ़ गया है। अब ये तो क्लियर ना कि डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा। दैट इज टू बी अंडरस्टूड। सो फाइन, क्लियर हो गया। सो इट विल इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिख सकते हैं आप, इट विल इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पता है कि आपको सिर्फ पास होने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ना, फिर तो याद ही नहीं रहेगा ना। और अगर आप डेली लाइफ से बहुत सारी आसपास की चीजों से लिंक कर लोगे तो आसान लगने लगेगा। ठीक है बच्चों, ये थी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एक लास्ट क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग। सपोज कीजिए कि आपको मेटल दिया गया है। देयर आर 2 वेसल्स जिनके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ मेटल है, और आपको उन मेटल्स को यूज करके एक व्हील बनाना है। एक व्हील डिस्क शेप का बनाना है। वन इज डिस्क, और सेकेंड जो आपको बनाना है वो बनाना है रिंग। दोनों की रेडियस सेम होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, you have been provided with 2 different vessels having metal, certain metal, same metal। उसे यूज करके आपको एक तो डिस्क बनानी है और एक आपको बनाना है रिंग ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, तो मुझे बताइए जो सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इनमें से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, 1 और 2? सोचिए, अब आपको सारी चीजें पता है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा आपको। अगर मास एक्सिस से ज्यादा दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, और अगर मास एक्सिस के पास होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। तो आपको बताना है 1 डिस्क है, 2 रिंग है, इनमें से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। अगर सेम मटेरियल से दोनों करते हैं तो कोई बात नहीं, यू आर फ्री टू गिव योर आंसर। चाहे आप 10 बार गलत आंसर दो, अगर आप 11th टाइम में भी सीख गए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी आपका बुरा नहीं मानूंगा इस बात का कि आप हर बार गलत आंसर कर रहे हो। जस्ट ट्राई, क्योंकि वो हैबिट होती है बचपन से। अगर सुनो ध्यान से, अगर आप सेम मटेरियल यूज करते हो और डिस्क बनाते हो, ध्यान से सुनना, और डिस्क बनाते हो, तो आप उस मटेरियल को स्प्रेड करोगे, है कि नहीं? आप सेंटर से लेके यहां तक स्प्रेड करोगे। स्प्रेड करोगे तो मास यहां से लेके यहां तक हो गया डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन अगर आप रिंग बनाने जाओगे तो आप सारा मास यहीं पे लगा दोगे ना, यस और नो? तो सारा मास, मतलब बात सारी कहां आती है, लॉजिक सोचने की। हमारे पढ़ने का तरीका 6, 7, 8 से ऐसा बन जाता है कि मैम ने पढ़ाया, लाइन अंडरलाइन करवाया, बच्चों कल याद करके आना, लिख के लेके आना। वो लिखने और याद करने में टाइम निकल जाता है, ये तो कभी सोचा ही नहीं। सो दैट इज व्हाई some students find my classes interesting, some find it like मुझे तो हेडेक हो जाता है यार, इतना पूछता है। so it is up to you। फिर समझे, अगर आप डिस्क बनाने गए तो मास यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इसके केस में सारा यहाँ पर आ गया, तो ऑब्वियसली मास का डिस्टेंस ज्यादा किसमें हुआ, रिंग में। सो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो आप लिख सकते हैं फॉर सेम substance and radius, for same substance and radius, comma, moment of inertia, आपसे ऐसे लिख दो, I ring will be greater than I disk। ठीक है, इससे क्लियर हो जाए। I of ring will be greater than I of disk। Yes Agam, now you can ask what you wanted। सर जब हमने पहला एग्जांपल लिया था ग्लोब वाला, वो तो हमने 2D फिगर देखी थी, लेकिन 3D में प्रैक्टिकली सोचा जाए तो वाटर एक्सिस के थ्रू, थोड़ा एक्सिस पे भी करेगा, दूर भी जाएगा, पास भी उधर नहीं, एक्सिस पे क्यों रहेगा? आप एक्जेक्टली 3D देखो ना। ग्लोब मैंने इसीलिए बोला था, अर्थ का जो मॉडल होता है उसे आप ग्लोब कहते हैं। अपने घर में ग्लोब रखो और उसके ऊपर अपर एंड पे और लोअर एंड पे आप आइस रख के उसे मेल्ट कराओगे तो कहाँ जाएगी? ऐसे करके चारों तरफ बाहर की तरफ ही तो निकलेगी दोस्त, एक्सिस से तो दूर ही जाएगी। दैट विल इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है,
आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अभी